नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ थिंक लाइन। टुडे एज यू कैन सी माय गेस्ट may be a new face for you, but today we are going to talk purely on economics or finance, because our prime minister always says, and nowadays when he goes abroad, he very clearly says to the Indian diaspora also, in 3.0 Narendra Modi government will be third biggest economy of the world. So what are we doing and what needs to be done? Where exactly we are? हम लोग आज कहां पर है और कहां पहुंचना चाहते हैं? काफी लोग तो ऐसा कहते हैं कि 2029-30 में तो हम लोग 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो एक सोचने की बात है, इट्स अ थिंग टू थिंक। टू रीच एट 4 ट्रिलियन it took us 75-76 years and another 4 trillion in next 5 years. How is it going to be possible? कैसे होने वाला है? तो इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट मिस्टर शरद कोहली को। सीए हैं, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, और साथ में ही इज वेरी मीडिया savvy. People would have seen him in so many national channels talking on basically on economics and good fundamentals of economics and where what goes wrong. He knows it. मित्रों, आज उनसे बात करना शुरू करेंगे। प्रेडोमिनेंटली हम अंग्रेजी में बात करेंगे, मगर साथ में आपको समझाने के लिए बीच में हिंदी भी था। मैं शरद कोहली जी को फ्लोर सौंपूं उसके पहले एक दो छोटी सी बातें मैं पूछना चाहूंगा, जो मैं पहले कह देता हूं, एंड आफ्टर दैट वेरेवर रिक्वायर्ड, वेरेवर आई फील लाइक कि जैसे मेरे दर्शकों को ये जानने की जरूरत है, आई विल टेल हिम। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं आजकल तो बात करते हैं थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, भारत को बनाने की। मगर नीति आयोग ने कुछ प्लानिंग की है उसके बेस के ऊपर। तो हम इस वार्तालाप, this dialogue, we are going to start with this Niti Ayog's new planning. Niti Ayog has very clearly stated that in coming 5-10 years, we'll be developing infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. And some cities with the name were Surat, Navi Mumbai, this kind of cities. Not Mumbai, Navi Mumbai we are talking. Or Naina, which is upcoming, we are talking about. Similarly, Delhi, to Delhi nahi, Delhi के आसपास के इलाके और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी एक बात, we want to make our country in logistics very, very strong so that our logistic costs, which is 12-14% today, could come down to competitive 6-8% in the international, which will help a lot. Today, Indian economy size 4.01 trillion, Japan 4.3 trillion, Germany 4.7 trillion, and then China and USA. We are the fifth biggest. How are we and when are we going to cross 4.7 trillion? That's going to be my first question. And is it realistically possible, शरद जी? वास्तविक रूप से ये बात हो सकती है? क्योंकि we are talking in terms of agro tech, infrastructure tech, so many things, logistics, space tech, बहुत सी बातें कर रहे हैं। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है। Where are we going to go? What do you foresee, sir? सर, आपको एक तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल, छोटे से चैनल पे आने के लिए, एंड warm welcome to you. I hope you enjoyed this session of economic brainstorming. Thank you so much. Thank you. Sir, the floor is yours. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Himanshu, and a very, very warm welcome, shall I say, or my greetings to all the followers and viewers of your channel, Think Line, and I hope they will enjoy the conversation today. Well, coming down to your question, whether this is possible or not possible, I hope I'm audible. You can hear me? Yes, very clear, very clear. So, coming down to your question, let me, because we eat, breathe, sleep economics, so yes, I can update the numbers which you just spoke of. Well, India right now is 3.75. There was a bit of a whiff a couple of months ago when ऐसा सुनने में आया, एकदम किसी ने उड़ा दिया कि हम 4 ट्रिलियन पहुंच गए, पर वो ठीक नहीं था। हम अभी 3.7, 3.75 के आसपास है। और आपको एक और अपडेट दे दूं, जो कि as latest as कल का है, which is yesterday's, that Japan has slid behind Germany.
जापान जर्मनी से पीछे सरक गया है और जापान अभी 4.2 पे आ गया और जर्मनी 4.4 पे है। तो ये मैंने इसलिए नंबर्स अपडेट किए कि इस नंबर्स के अपडेट करने से क्या होता है, जब कोई आप रेस दौड़ रहे हैं तो when you're running a race, there are two ways you can win. Either you run faster than people who are running ahead of you, or the people running ahead of you, they slow down and you automatically at your normal pace you overtake them. तो यहाँ पर कुछ दोनों ही हो रहा है। हम लोग 7% के रेट से आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों का जापान रिसेशन में चला गया है। जर्मनी का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, पीछे जर्मनी रिसेशन में था, अभी 1-1.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। जीरो ही मान के चलिए, कोई खास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो हमको दोनों फायदा मिल रहा है। वी आर गेटिंग advantage from both the ends. One, we are running faster. The world economic growth right now is at close to about 3%, 2.5-3%. We are growing at more than double the world average growth rate. So I think that goes in our favor. Which is why my own calculation, Himanshu, says that we will be able to overtake Japan now. पहले जर्मनी था, अभी मैं जापान की बात करता हूँ। मुझे लग रहा है कि हम पहले जापान को ओवरटेक करेंगे 26 के कहीं शुरू में, 26 के शुरू में या बीच में। उसके बाद हम जर्मनी को ओवरटेक करेंगे कहीं 26 के एंड में या 27 में। ये मेरा अपना फोरकास्ट है। तो हम लोग जो मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, the guarantee which Modi's guarantee which he was talking about recently also in UAE when he was commenting, I think that guarantee is not a farce. That guarantee is true, because even if we mathematically extrapolate these numbers, at the rate of 7% or 7.5%, different agencies, they give different GDP rates. आप सुनते होंगे कोई 6.5 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कोई 7.2 बोलता है, कोई 7.5 बोलता है, कोई 6.9 बोलता है। I'm taking the average of averages around 7%. तो हम इस रेट से, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया, it will be easily achievable for us. We will overtake them, and I think it will be a big achievement, because मैं ये नहीं कहता कि when you become the third largest economy, all your problems of the country will be solved. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। I'll be very realistic. हमारे अभी इकोनॉमी में जो हिमांशु जो प्रॉब्लम्स है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स टू नो। हम लोग अपना कितना भी तारीफ करें, वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक I would like to congratulate the government for the last 10 years, the work it has done. It has worked effortlessly, and I think it has been a corruption free top regime. That's what I feel. Yes. कि कम से कम ऊपर के लेवल पर, टॉप लेवल पे कोई करप्शन नहीं है। नीचे तो बहुत सुनने में अभी भी आता है, पर कम से कम ऊपर साफ है, तो नीचे वालों को अभी थोड़ा डर लगता है। They are scared to ask for money. मनी चलता है, पर आप थोड़ा डर के मांगते हैं। क्यों? पहले तो क्या था कि ऊपर, अरे जब राजा लोग लेते हैं तो हमें क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी लेते हैं, सो व्हाट, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी क्या बोलने वाला है? सो आई थिंक बिकॉज ऑफ एफर्टलेस एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हम लोग 2014 में जब ये सरकार आया था, हम लोग $1.9 ट्रिलियन थे। हिमांशु, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर फॉलोअर्स, that from 1947 to 2014 we were 1.9 so आप साल गिन ली, 1.9, और from 2014 to 2024 हम लोगों ने करीब करीब, तो जितना हमने उस टाइम ऐड किया उतना हमने 10 सालों में ऐड कर। तो मेरे ख्याल एक हिंदी में कहावत होता है, पता नहीं आपके गुजरात में बोलते हैं कि नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है कि what is evident in front of you, उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं है। What is in front of you, I don't need to prove it. So the numbers itself, they prove that what we did in 67 years or 66 years, we have done in 10 years. So something right must have been done. Yes. But I was highlighting the problems which are plaguing our economy, Himanshu, which is very important. We still have a major problem of unemployment. हालांकि उतना नहीं है जितना पहले था, पर अभी है। कोई ये कह दे कि यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, तो मैं नहीं मानूंगा। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट स्किल्ड वर्कफोर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ना के बराबर है। स्किल्ड वर्कफोर्स, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम पुटिंग इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इफ यू आर स्किल्ड, इफ यू हैव सम वेरी गुड स्किल, देन यू डू नॉट हैव, इनफैक्ट इधर कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स के पास, दे हैव गॉट मोर देन वन जॉब्स। दे कैन चूज A, B, C, D, they can choose so many jobs, but that is only for skilled workforce. But unfortunately, most of our workforce is not skilled. So therefore, unemployment is problem number one. Problem number two is poverty. 25 crore people have come out of multi-dimensional poverty index in the last 10 years. 25 crore लोग, living standard, health, education के basis पे कुछ criteria है, 10-15 criteria, उसके basis पे लोग बाहर आ गए।
उनका बैंक अकाउंट बहुत नहीं है, they are not very rich, they don't carry a lot of cash, they don't have a lot of properties, but at least they are out of the basic poverty, which is multidimensional poverty, which I feel is a very positive step taken by Niti Aayog, a new way of looking at poverty. तो अभी भी पॉवर्टी है क्योंकि वो लोग अभी those people are very vulnerable, उन लोगों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, वरना a slight mistake and they can, अभी मोदी जी ने एक स्पीच में बोला भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हिमांशु, आई थिंक your followers would like it if they have not observed that 80 crore people are getting Garib Kalyan Yojana 5 kilos of anaj every month, right? And 25 crore people have come out of multidimensional poverty index. So how come 25 crore people have come out of multidimensionally and we are still giving to 81 crore 30 lakh people every month? So he said a very interesting thing, and I was saying this for a long time. So I felt very good that something which was my logic, it matched with the Prime Minister's logic, because मैं बहुत दिन से इसको सोचता था, जवाब भी देता था. तो उन्होंने बोला ये लोग अभी बहुत वल्नरेबल है, इनका अभी ये लोग अभी बाहर आए हैं, इनका जरा सा भी हमसे मॉनिटर नहीं किया, हमने इनका ध्यान नहीं रखा, तो they will slip back into poverty. Yes. So even if they have come out of MPI, they still need a free, and अगर उनको दे रहे तो कोई हर्ज नहीं है, we are giving them a kind of support, we are helping them out. So I think that is the answer. So poverty is the second problem which plagues our nation. Third सबसे बड़ा problem मुझे नजर आता है, which I would like to highlight here, is inequality of income and wealth, which is a major problem in our country, because आपने सुना होगा K-shaped recovery बोला जाता है, we call of K-shaped recovery, that sometimes the rich become richer, the poor, K goes like this, so rich become richer and the poor become poorer. So वो थोड़ा सा problem है, because उसके पीछे simple finance logic है, which is there is a saying in Hindi, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ. If you have money with you, it will attract more money. But if you do not have money with you, there are more chances of you sinking into poverty, and you are becoming further poor. So I think inequality of income and wealth is still there. If 5% people own more than 50% of the wealth of the country, I think it is a problem as far as I'm concerned. Although this inequality of income is there in all countries, it is not there in our country. But in our country, because the population is so big, 142 crore people, तो यहाँ पर वो दिखाई ज्यादा देता है. It is more visible in our country that our country has got this problem of inequality. चौथा बड़ा problem, which is हमारे यहाँ 60 से 70% of our population depends directly or indirectly on agriculture. This is true. Whether you are in city, tier 3 city, you are in village, rural, some of the city people also, उसका आरती का काम है, agent का काम है, they depend on agriculture. But contribution of that sector to our economy is only 16 to 17%. Which is, I think, a very skewed percentage, because आपका जो सेक्टर पे 60-70% population depend करता है, उसका contribution तो कुल 16-17% है. So I think that becomes a kind of a dichotomy that, so we need. So therefore, problem fifth, which is related to the same, is that our agriculture sector is not a very high profit making sector. So हमारे agriculture, उसको हम अन्नदाता बोलते हैं, उसको हम PM किसान निधि देते हैं, उनको fertilizer subsidy देते हैं, उनके लिए हम कितना कुछ करते रहते हैं उनके लिए, कितना भी कर ले. अभी हम देख रहे हैं, we are witnessing the आंदोलन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, because their problems seem to be never ending. Whatever you give to them, so there is some degree of dissatisfaction and politicization. But at the same time, the fact of the matter is that this sector is still not a very, very profitable sector. And still the farmer tells his son that go and make your living, because you have nothing much left for you in these farms. और इस जमीन में तेरे लिए कुछ नहीं रखा, अपना शहर में जाके अपनी जिंदगी बना, कुछ भी काम करो, जहां से जाओ, हमने तो सारी उम्र निकाल दिया. So I think these 5 problems, I feel they are plagued. And of course, I can add more. One more problem which I can highlight is skilled manpower. मुझे लगता है skilled manpower हमारा country में बहुत बड़ा एक problem है, क्योंकि अगर हम skilled manpower यहाँ पर कर दें, तो मुझे लगता है we can solve our problem of unemployment much quicker than what we had. Because I know, Himanshu, at least 12 companies, बड़ा company, जिनके HR से मेरा बात होता है, जिनके CEO से, वो लोग मेरे को बोलते हैं that we are not able to find the workforce. आप बोलते हो कि लोगों को नौकरी नहीं है, हम बोलते हैं हमको नौकरी करने वाले नहीं मिलते हैं, because we don't find skilled people. Where to find them we don't know. उनका जगह खाली पड़ा है, कितने टाइम खाली रहता है, बहुत मुश्किल से उनको skilled manpower मिलता है. तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्किलिंग पे ध्यान देगा, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. और आखिरी प्रॉब्लम का लिस्ट बहुत लंबा है,
और आखिरी प्रॉब्लम जो मेन जो हेडलाइन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है, वो प्रॉब्लम है हिमांशु एजुकेशन, विच इज लिंक टू द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट आई मेंशन्ड, जो मैंने स्किल डेवलपमेंट का बात किया उसी से कनेक्टेड है एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो वर्क ओरिएंटेड नहीं है। जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज खुला हुआ है, आई एम सॉरी टू से, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ डिग्री मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्रीज है। इधर व्हेन यू फिनिश योर बीए एंड एमए, तो यू आर आज अब आगे क्या करने का है, बताइए ना क्या करेंगे आगे। अरे भाई मैंने 12 और 3 15 और 3 18 साल पढ़ाई किया। जब मैं प्रिपरेटरी स्कूल में गया था, मैंने तो 3 साल प्रिपरेटरी स्कूल, उसके बाद 12 साल 12th तक, 3 साल वहां, 12 और 3 15 18 साल बाद मेरे से पूछते हैं अभी आगे क्या करने का है। तो यहाँ पर क्या है कि आई थिंक देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन वर्क एंड इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। सो मुझे लगता है कि वो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में आप जब आप कॉलेज में होते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर जब तक आपको बीए एमए करने के बाद आपको फिर कुछ और करना पड़ता है। तो वो कुछ और अच्छा होता क्या है उससे, most children are not able to study for that long. They cannot afford it. Their parents cannot afford it. They cannot sustain for that long in education. So therefore, I think there is a major need to reform our education system. और इसी education system से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसी के अंदर है वो जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। वो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक खाई है। There's a big hole, a gaping hole. एक सिटी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में एक पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, एक गांव में टीयर 3 सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। दोनों बच्चों को आप साथ में खड़ा कर दीजिए, पुअर चिल्ड्रन, what wrong have they done? Just because they went to a school where all facilities and high class education was there, whereas the other child went to a government school where the teachers were not good, infrastructure was, therefore उसका फ्यूचर जो है वो ब्लीक हो जाता है। So I think these are 6-7 problems which I feel our country is plagued with. So even when we reach, coming back to what you said Himanshu, even when we reach 5 trillion, तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इस पे जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस पर भी इन प्रॉब्लम्स पर सर्जिकल स्ट्राइक का जरूरत है। सर्जिकल, व्हेन आई से सर्जिकल स्ट्राइक, ये प्रॉब्लम को अगर हम स्पेसिफिकली इस एक प्रॉब्लम के लिए अगर हम एक प्रॉब्लम मिनिस्ट्री अलग बना दें और 100 आदमियों का टीम बना दें, कोई रीजन नहीं है हिमांशु कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। I mean, I'm not interested in politics anyway, but I have solutions with me and I know how to solve these problems. हमारा कंट्री बड़ा है, मुश्किल जरूर होगा पर इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका ये, एक तो आप इस पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, दूसरा तरीका ये कि आप जब ग्रो करते हैं, सपोज टुमारो वी बिकम 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन, तो वो ठीक है, 2047 तक 2050 तक कुछ हद तक अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होता जाता है। जब आप बड़े होते जाते हैं, जीडीपी ग्रोज, so some problem gets solved automatically. But I think if we want to solve these problems quickly and we want to become a developed country quicker, अमृत काल जिसका बात करते हैं 2047 का, मुझे लगता है वो अमृत काल can come sooner, 2047 can come sooner if we can do surgical strikes on these 6-7 problems which I highlighted. Himanshu, over to you. Oh, okay. Now I'll talk specifically about development of tier 2 and tier 3 cities, and development of on infrastructure on one side and logistics on other side. What does Niti Aayog do in this? What are they doing? What in coming 5 years? What are we going to see? Because I can see quite a few things happening. Surat is a tier 2 city, but around Surat I see quite a few things happening. See, Niti Aayog, Himanshu, is a policy making body, and Niti Aayog makes a policy. And जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसी को हटा के अभी नीति आयोग आया। So they make policies and they forward to 2 agencies. One is to central government, one is to state government. अभी क्या है कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये जो डबल इंजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट इसी में से निकल के आया कि ये डबल इंजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। इसका मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहां पर आपका एक इंजन काम नहीं करेगा, या तो स्टेट वाला इंजन नहीं काम करेगा या सेंटर वाला इंजन नहीं करेगा, वरना 2 इंजन तो सब जगह होते हैं ना। तो डबल इंजन का मतलब क्या है? सो मुझे लगता है कि नीति आयोग का ये जो आपने बोला, व्हाट यू स्पोक ऑफ जस्ट नाउ, आई थिंक नीति आयोग कैन बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस infrastructure related policies and planning if both the engines of
of the governments they fire. Example, I'll give you an example. Let's say Uttar Pradesh, where Yogi government is there. Niti Aayog gave its recommendation for smart cities, gave its recommendation for highways, gave its recommendation for logistics, gave its recommendation for religious tourism. बहुत सारा recommendation नीति आयोग ने दिया. अभी देखिए आपके जिस स्पीड से वो implement हो रहा है, you know, incidentally I live in Delhi, so UP is next door. I cross into UP. It takes me 10 minutes to cross into UP. कई बार दिन में मैं 3 बार नोएडा जाता हूँ, cross करके वापस आ जाता हूँ. So what I'm trying to say is that will of the state government is required if you want Niti Aayog policies to be successful. Whatever Niti Aayog may recommend, it will not happen until and unless this animosity between the center and the state. Because I think मुझे लगता है कि अभी हमारे कंट्री में जो फेडरलिज्म है, जो ये सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया है, वो बहुत बिटर होता जा रहा है. और दिन ब दिन अगर नॉन एनडीए गवर्नमेंट है तो उनको वो एनडीए गवर्नमेंट को अपना जानी दुश्मन मानते हैं. और ऐसे ही बिकॉज वो दुश्मन मानेंगे तो नेचुरल बात है कि एनडीए से भी आपको कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्स तो आएगा नहीं. ताली तो 2 हाथ से बजता है. सो आई थिंक जब वो लोग इतना ज्यादा गंद बकते हैं, बकवास करते हैं, लेवल नीचे आ जाते हैं, तो नेचुरल उनको सम काइंड ऑफ साइलेंट रिएक्शन comes from NDA, from the government, central government also. It may come in the form of delayed payments. It may come in the form of some biased policies here and there. But we'll first favor and they're right. We will first favor the states which have a similar government where both the engines are firing. So I think Niti Aayog's plan is that they have to develop tier 2, tier 3 cities. कि हमें जो tier 1 cities से जो ये population explosion हो रहा है और pollution हो रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि यहाँ से लोग निकल के और बाकी जगह सारे लोग दिल्ली, मंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ना बसे. People should come to tier 2, tier 3 cities, and then we can solve the problem of pollution. We can solve the problem of housing. We can solve the problem of education. We can solve the problem of health, because the pressure on the infrastructure of tier 1 cities is too much, which is why Niti Aayog came out with this tier 2 cities. Plus also it ensures a regional balance. Because अभी क्या है कि इंडिया और भारत 2 कंट्री हमारे देश में है. अभी आप अगर मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन अहमदाबाद आल्सो, तो आप इंडिया में है. जैसे कि आप 20-25 किलोमीटर चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप इंडिया से भारत में आ जाते हैं. मेरा ये भारत वो वाला भारत नहीं है जो मोदी जी बोलते हैं. मेरा उस भारत से मतलब नहीं था. मेरा मतलब है कि आप ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात शरद जी कर रहे हैं. मैं आपने सुना होगा कि पिछले कितने एपिसोड में बोलता रहा हूं, द जर्नी ऑफ भारत फ्रॉम इंडिया नीड्स टू टेक प्लेस इन अ रियल सेंस दोस्तों. और ये जो शरद जी बता रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, अगर ये अचीव करनी है तो you have to develop tier 2 and tier 3 cities, as many as possible. Only then this journey from India to Bharat can take place. Yes sir, go on. Why? The reason is that when you move from tier 1 to tier 2, tier 3 cities, so suddenly education level change हो जाता है, infrastructure अलग किस्म का देखने लगता है, markets अलग दिखती हैं, malls अलग दिखाई देते हैं, shopping areas अलग दिखाई देते हैं, hospitals की quality change हो जाती है, सड़कों का क्वालिटी चेंज हो जाता है, हाईवेज अलग दिखाई देने लगते हैं. सो why should this be? Why cannot we have an equitable distribution of infrastructure between if you want tier 2 city to become tier 1 city, if you want tier 3 city to become tier 2 city, it is as simple as that. You have to maintain the similar infrastructure. If you maintain the infrastructure, people will not run towards Delhi, Mumbai, Bengaluru and Chennai. They will not run. They will love to live in in a place which is not served by that much of infrastructure. बहुत सारा examples है. मैं examples में नहीं जाता, but the point I'm trying to make, this is the reason, Himanshu, to answer your question, this is the reason I think Niti Aayog recommended that there should be dissemination also in the interest of equitable geographical development. कि development खाली इंडिया में नहीं करना है, हमको डेवलपमेंट भारत में भी करना है. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितना गांव का एरिया है, ऑल द विलेजेस, दे आर क्लोजर टू, बिकॉज पहले टियर 1 सिटी बनता है. अब मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ, उसके आसपास नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है. आई एम श्योर योर फॉलोअर्स मस्ट हैव हर्ड दीस नेम्स. तो आप अभी क्या है कि दिल्ली के बाद आपको गांव नहीं मिलेगा. दिल्ली के बाद पहले आप नोएडा जाएंगे, नोएडा के बाद आगे आपको गांव मिलना शुरू हो जाएगा. पहले आप गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव के बाहर निकलेंगे, आपको गांव मिलना शुरू हो जाएगा. गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद के बाद आपको गांव. सो दीज रूरल एरियाज आर क्लोजर टू
they're closer to tier 2, tier 3 cities. They are more accessible. So the point of Niti Aayog is, Himanshu, here's the answer to your question in one line, that if we develop tier 2, tier 3 cities infrastructurally and economically, then our rural areas will also come within the periphery. आप रूरल एरिया को भी पेरिफेरी में ले लेते हैं, क्योंकि टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर बहुत सारा रूरल एरिया आ जाता है, और हम गांव के डेवलपमेंट को और नजदीक पहुंचा देते हैं, हम और पास आ जाते हैं गांव के. तो दैट इज द लॉजिक ऑफ नीति आयोग. एंड आई थिंक थोड़ा सा ये सफर लंबा है, दिस जर्नी इज लॉन्ग, बिकॉज हालांकि काम बहुत, आपने जैसे सूरत का बताया, सूरत के आसपास काम शुरू हो गया है. अभी तो सूरत का नाम दुनिया भर में, वो जो आपका नया बिल्डिंग बना है, उसके लिए सुनने को मिलता है, which is the diamond center which has come up, so I mean, so this is what is required. I think my recommendation to नीति आयोग, अगर आपका ये शो वहां पर कोई उसका नुमाइंदा देखे, my recommendation is कि हर इंडिया की सिटी में, every Indian city must have one landmark like the one they have created in Surat. कि हर शहर को, हर छोटा शहर को एक ऐसी चीज से जाना जाए कि लोगों को वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़े, वहां पर बिजनेस खोलने से पहले सोचना ना पड़े, वहां पर रहने से पहले फैमिली से पूछना ना पड़े, सीधा फैमिली इमीडिएटली तैयार हो जाए. There should be good schools, there should be good hospitals, there should be good roads, there should be good markets, there should be good malls, there should be good townships, there should be sufficient supply of electricity, there should be sufficient supply of water, the air should be clean. अगर आप किसी सिटी में ये सब करके देते हैं, आप देखेंगे कि जो लोग ये दिल्ली मुंबई की तरफ भागते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड इन पे से प्रेशर कम हो जाएगा. पहला एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज, आपका अक्रॉस द कंट्री डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा. आप ज्योग्राफिकली, ऐसा नहीं है, लोग बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, what they comment, they said fine, we went to Delhi, but when we came out of Delhi, the rest of India is all village. So I think that comment, there's nothing wrong in being a village, but what they mean, and sometimes they can't say, is that the rest of India is not that developed. It is very poor. There are still people living in those huts and those mud houses, and वो गोबर का वो लगा रहे हैं, वो उधर so nothing wrong in that, but the prosperity seems missing when you cross these villages. So if you want to bring prosperity to your villages, you have to expand tier 2, tier 3 cities. Then only the next step will be to reach the villages. दर्शक मित्रों, बहुत स्पष्ट शब्दों में शरद जी ने आज समझा दिया. देखिए, मैं और 2 एग्जांपल दूंगा. जैसे सूरत में हीरा बुर्ज बनाया, लोग आप में से काफी लोगों को पता होगा, इस साल के भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत कंबाइंड नंबर 1 है. सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन डूइंग क्वाइट अ वंडरफुल जॉब. और माइंड यू, सूरत का आबादी इतना कम नहीं है, 55 से 60 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर. When we are talking of tier 2 cities, that is tier 2 cities. दूसरी बात, अभी एक मुंबई जैसे शहर के अंदर, in a city like Mumbai, people are upset. You besides, but people are upset. Why? They say, please don't take BSE out of Mumbai. There are moves to shift that to GIFT City, Gandhinagar. So हम जब बात करते हैं from tier 1 to tier 2, a real भारत setting up, tier 2 सिटी बनेगा तो भारत के गांव बनेंगे, भारत के गांव समृद्ध होंगे, प्रॉस्परस होंगे. यही चीज शरद जी बता रहे थे. और इसके लिए नीति आयोग पॉलिसी बनाती है, और उसमें जरूरी क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों को एक ही दिमाग से काम करने की जरूरत है, कंकरेंट विथ ईच अदर, एक दूसरों के प्रति सद्भावना से काम करने की जरूरत है. वरना क्या होता है, कर्नाटक गवर्नमेंट के पास आज सैलरी देने को पैसे नहीं है. जाने से पहले, वक्त तो खत्म हो गया है, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, मगर जाने से पहले आई गिव शरद जी 1 or 2 minutes to sum his total thought process of the day today. एंड आपको बोल दूं दोस्तों, आप देखते तो है, मुझे पता है, व्यूअरशिप से पता चलता है, मगर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, जिससे हमें बहुत सहयोग मिलेगा. शरद जी, योर फाइनल कमेंट्स. Well, I like to end this on a positive note, Himanshu. A lot of people, they come to me, और एक पुराना फिल्म का गाना है, पता नहीं आपको पुरानी फिल्मों का शौक है कि नहीं, कुछ लोग शौक रखते हैं. उसमें गाना था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई
तो मैं क्या करूं, अगर आपने पता नहीं सुना है कि बहुत पुराना गाना, आप गूगल करके देखिएगा आपको मिलेगा। वो गाना एक मैसेज देता है कि अगर अगर जीडीपी हमारा 5 ट्रिलियन हो जाता है, इफ वी रीच 5 ट्रिलियन, मुझे और क्या, टुडे वी आर क्वार्टर टू 4 ट्रिलियन, एंड इफ वी 7 ट्रिलियन, तो हमें क्या, what advantage is it bringing to me? I'm very happy that my country is today 3.75 trillion and we are up from 1.9 in 2014. But so I leave this on a positive note, that to your viewers and followers who do not probably follow economics that much, कि GDP आपके और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम देते हैं उसको मिला के ही बनता है। ये हो सकता है किसी के पास कंट्री का प्रॉस्पेरिटी का फायदा ज्यादा हुआ, सम पीपल मे हैव बेनिफिटेड मोर, अभी हमने बात किया इनइक्वालिटी का, सम पीपल मे हैव बेनिफिटेड मॉडरेटली, सम पीपल मे हैव बेनिफिटेड लेस, सम पीपल मे हैव बिकम पुअरर आल्सो, बट कुछ ना कुछ फायदा मेरे को लगता है कि अगर कंट्री प्रोग्रेस करेगा, ये जो मैंने प्रॉब्लम्स हाईलाइट किया और जो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक का बात किया कि प्रॉब्लम्स पे सर्जिकल स्ट्राइक का जरूरत है, अगर ये नहीं भी गवर्नमेंट करती है, तब भी अगर हम ग्रो कर रहे हैं एट द स्पीड एट विच वी आर ग्रोइंग, एंड इफ वी रीच 5 ट्रिलियन, सो देयर विल बी अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन दैट वी हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट। बट मैं आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स को एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडवाइस देता हूं जाते जाते, कि आप अपने आप को 2014 में आप कहां थे, अपना बैंक बैलेंस, आपके पास घर कौन सा था, आपके पास गाड़ी कौन सा था, आपके पास कपड़े कैसे पहनते थे, क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, अभी 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, आप उसको कंपेयर करिए। कोई गवर्नमेंट का फेवर करने का, उसको अपोज करने का जरूरत नहीं है। अपने आप को देखिए, छोड़िए गवर्नमेंट का, मोदी जी को छोड़िए, राहुल गांधी को छोड़िए, केजरीवाल को छोड़िए, सब लेट अस लीव पॉलिटिक्स असाइड, लुक एट योर ओन इकोनॉमी। आई कॉल दिस एज योर ओन इकोनॉमी। आपका इकोनॉमी 2014 से लेके, पता नहीं कुछ लोगों को तो याद ही नहीं रहता है, शायद उनको ढूंढने में दिक्कत होगा, पर अगर ढूंढ सके तो अच्छा होगा। तो 2024 में आपका इकोनॉमी कितना चढ़ा है, मुझे लग रहा है that will provide you the answer. Have you progressed in these 10 years? Have you not progressed in these 10 years? I think that for me, Himanshu, is the best way of looking at how this government has performed. और यही आपको आगे के लिए भी, जो ये लोग गारंटी देते हैं, जो लोग वादे कर रहे हैं, आगे के लिए भी आपको ये this will provide you a direction as to how to look at these promises in the times to come. Thank you. दर्शक मित्रों, आपने सुना, अपने आप की स्थिति को कंपेयर कीजिए 10 साल पहले की, आपको पता चल जाएगा आपने विकास किया न कि नहीं किया। अगर जो आपने विकास किया तो देश ने भी विकास किया है, वो बात आपकी समझ में आ जाएगी। और शरद कोहली जी जैसे इकोनॉमिस्ट हमें कहते हैं कि बाय 2026-27 विल बी थर्ड बिगेस्ट, सो वी हैव टू बिलीव इट एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट। और दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था, मैं जो आपको हिंट्स दे रहा था कि अब का डेवलपमेंट भारत का, इंडिया से भारत का डेवलपमेंट जो भी होने वाला है, ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर होने वाला है, क्योंकि टीयर 1 सिटीज हैव सैचुरेटेड, मैच्योर्ड आउट। जैसे कि अभी मैं, मेरे घर में मैच्योर इंडिविजुअल हूं, डेवलप कौन होंगे? मेरे बच्चे होंगे, और वो ही बड़े होके कमाई करेंगे। सोचिए आप। इसी नोट पे, आज तो वक्त बचा नहीं है, मगर फिर से आपको मैं कहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को देखते जाइए। और शरद कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे छोटे से चैनल पे आए, यू टॉक विद आवर पीपल। Thank you. सो नाइस ऑफ यू सर। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much and all the best. Thank you.